Hello everyone. Today I am going to discuss about the term-wise curriculum of class 12th mathematics and the deleted syllabus for 2021-22. So let us start with the first term syllabus. In first term syllabus, the first chapter is relation and function. And in relation and function, I will show you, I will compare with the revised curriculum for 2021-22 before term-wise curriculum. And this part has been removed, right? This has part has been deleted. Now I will show you in the NCERT book. See, this is the first chapter, and I will show you from where the topic has been deleted. ये पूरा है, यहाँ से delete हो गया. From here the topic has been deleted, right? Composition of functions and invertible function. और यहाँ से पूरे examples and the exercise number 3, that is 1.3, is fully deleted. And binary operations तो पहले डिलीट हो चुका था, मीन्स 2019-20 से ही डिलीटेड है वो. और now let us move toward the last exercise. This 1.4 exercise is also fully deleted. Now we'll move toward the miscellaneous exercise. Now miscellaneous exercise, whatever the questions based on binary operation and the composition of function, okay, composite function and invertible function. Okay, so जैसे ये दोनों है, ये भी है, और ये भी है equivalence relation. Now this is binary operation based question, तो ये deleted है. And this is there, and this question is example is there, this is also there. Example 49 भी है, example 50 भी है, और example 51 भी है, right? Example 51 भी है. यहाँ पे f plus g is not 1 1, right? So यहाँ पर मिसलेनियस एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड है, सेकंड फंक्शन इनवर्स से रिलेटेड है, और थर्ड फंक्शन भी कंपोजिट फंक्शन f of x इज कंपोजिट फंक्शन. एंड फोर्थ क्वेश्चन इज देयर, फिफ्थ क्वेश्चन इज देयर, sixth question is also there, seventh question is not there because this question is based on composite function. And eighth है, ninth भी है, ninth again ninth is not there, x is only invertible element and p of x. And this the ninth question is actually based on binary operation, so that has been deleted. And 11 is there, 12 again find f inverse, so inverse of inverse already delete हो चुका है. So 12th binary operation, this also deleted. And this also binary operation related, so this also deleted. 14 also deleted. And 15 is not deleted, okay, 15 is not deleted. And 16th question, 17th question not deleted, 18th क्वेश्चन डिलीटेड है क्योंकि यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन वाला है, और 19th भी बाइनरी ऑपरेशन है, डिलीटेड है. सो दिस इज द डिलीटेड questions and syllabus of chapter number 1. Now we'll move toward the next chapter, inverse trigonometric function. Now inverse trigonometric function, I will show you the complete syllabus. This part has been deleted, the major part of the chapter has been deleted, but that portion is very very important in respect of differential calculus and integral calculus. So I will show you from the textbook. So after first chapter, this is the second chapter. Okay, second chapter में कहाँ तक करना है, ये graphical representation वगैरह भी delete हो चुका है. And the first exercise is there, the first exercise is there. After first exercise, now the properties of inverse trigonometric function, यहाँ से पूरा का पूरा delete हो गया. But the suggestion which I would like to give to every student that, because as the properties of inverse trigonometric function is applicable in differentiation also, integration also, so वो अगर बच्चे करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि otherwise they will face difficulties in those areas, right? So let us move towards in the miscellaneous part. Now miscellaneous part, this exercise is completely deleted, but last year भी deleted था ये portion, but एक question CBSE के official sample paper में था. And in miscellaneous exercise, all the property based questions are deleted, only that principal value वाला question इसमें एक भी नहीं है, right? So this is the second chapter. Now we'll move toward the third chapter, matrices. So matrices में this is the
reduced syllabus. Now I will show you the full syllabus. This is the full syllabus. थोड़ा बड़ा दिख रहा है. Now I will tell you which part has been deleted here. See, यहाँ से पूरा delete हो चुका है, यहाँ से यहाँ तक. Okay. Concept of elementary row and column. This part has been deleted, but out of this part, this invertible matrices is there. Okay, invertible matrices is there. See, commutativity of multiplication of matrices and invertible, और उसके बीच वाला भी part delete हो गया. But इससे related कोई questions है नहीं book में. This part. No, here existence of non-zero matrices whose product is zero matrices. Okay. Now I will show you which part has been deleted in the NCERT book. Right. So let us move towards the matrices chapter. Matrices chapter में हम लोग सीधा जाएंगे elementary transformation में. Right. Operations भी है यहाँ पर, properties. Now I'm going towards elementary transformation. Elementary transformation. Right. इसके बाद है नहीं, ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज के बाद सिमेट्रिक्स. राइट. यस, यहाँ से पूरा पार्ट डिलीट है. एलिमेंट्री ट्रांसफॉर ऑपरेशंस फुल्ली डिलीटेड. सो इसके बेस पे, बट दिस पार्ट इज देयर. इन्वर्टेबल मैट्रिसेस इज देयर. राइट. इन्वर्टेबल मैट्रिसेस इज देयर, बट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इज डिलीटेड. एंड बेस्ड ऑन दैट इन्वर्स इन्वर्टेबल मैट्रिसेस, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इन्वर्स निकालने वाला क्वेश्चन डिलीट हो चुका है. सो दिस पार्ट इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. सो एग्जांपल 23rd example, all these examples has been deleted, and after this one exercise is there, this also deleted. Yes, this exercise fully deleted because this exercise is completely based on elementary transformation. Right. So iske baad whatever the questions based on elementary transformation, miscellaneous exercise में शायद एक भी नहीं है. Right. So now let us move towards the next chapter. So next chapter determinants. Determinants में बहुत जो major portion है, that is the properties of determinants that has been removed. So this part has been removed. Right. उसके बाद I will show you one more part has been deleted. यहाँ से यहाँ तक देखो, ये है full syllabus, and I will show you the reduced syllabus. This is reduced syllabus, and जो मैंने यहाँ पे जो शेड करके रखा है, that part is not there in the reduced syllabus. Right. So now I will show you which part is deleted. So इसमें जो NCERT के point of view से सिर्फ एक ही part इसमें delete हुआ है, that is properties of determinants. Right. And the question based on properties of determinants. So I'm moving towards that one. These all properties has been deleted. Yes, 4.3. So this complete section has been deleted, and the examples and the exercise, because all these examples and exercise after this the exercise is there, that purely based on properties of determinants, that has been deleted. So this one exercise 4.2, ये पूरा properties of determinants से related है. So ये पूरा exercise delete हो गया है. Right. After that we'll move towards the miscellaneous exercise. Miscellaneous exercise में जो properties of determinants related questions हैं, उसको वो सारे उसको छोड़कर बाकी सारे करेंगे. Right. Yes. यहाँ पे देखो, ये वाला पार्ट मैं बोल रहा था कि consistent और inconsistent, लेकिन जब हम लोग solution कर ही रहे हैं, this part solving system of linear equation in 2 or 3 variables, so that part is required. Okay. So now we'll move towards miscellaneous exercise. ये property से related है. 30 example, 31 also, 32 also, and 33 is not related with that properties, so वो करेंगे. 34 property से related है, and miscellaneous exercise में जो भी property से related है, that is question number 2 और क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्ट कर सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी प्रॉपर्टीज यूज़ करके कर सकते हैं. 4 आल्सो, 5, 6 एंड 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. These questions have been deleted from for this academic year. This is also 17 also, and
right? Okay, fine. Now we'll move toward the next chapter. So next chapter पे move कर रहा हूँ मैं. कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. तो इसमें थोड़ा से रिड्यूस्ड सिलेबस देख लेते हैं. दिस स्मॉल पार्ट इज देयर. नाउ विल सी द कंप्लीट सिलेबस. नाउ इन द कंप्लीट सिलेबस दिस पार्ट हैज बीन डिलीटेड, जो मैं अभी शेड कर रहा हूँ. रोल्स एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम विदाउट प्रूफ एंड देयर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन. ओके, सो ये वाला पार्ट डिलीट हो गया. सो नाउ आई विल शो यू इन द टेक्स्ट बुक वेयर इट इज. सो फर्स्ट एक्सरसाइज पूरा है, सेकंड एक्सरसाइज भी पूरा है, डिफरेंशिएबिलिटी से के बेसिस पे है. थर्ड एक्सरसाइज भी पूरा है और फोर्थ एक्सरसाइज भी पूरा है. आफ्टर दिस, आफ्टर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, पैरामीट्रिक फॉर्म है पूरा. सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आल्सो देयर. यस, यहाँ से 5.8 जो टॉपिक है मीन वैल्यू थ्योरम, यहाँ से पूरा पोर्शन, पूरा पार्ट डिलीटेड है. 5.8 एक्सरसाइज, राइट. एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी जो क्वेश्चंस जो बेस्ड हैं रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के बेसिस पे है, दैट क्वेश्चन हैव बीन डिलीटेड, राइट. सो नाउ आई विल चेक, आई विल शो यू there is no questions based on Rolle's theorem and Lagrange's mean value theorem, right here. So all questions students have to do. So this is the continuity and differentiability. Now application of derivative. Application of derivative में जो reduce हुआ है, this is the reduced syllabus and this is the complete syllabus. इसमें ये वाला part delete हुआ है, the rate of change of bodies. This part has been deleted. And use of derivatives in approximation. So textbook में दो exercise delete हुआ है, that I will show you. Which two exercise? The first exercise is based on rate of change, ये वाला 6.1. the complete exercise have been deleted. And उसके बाद increasing decreasing function है syllabus में. And the next one, tangent and normal, it is there. And after that approximation, this topic has been deleted. So दो ही topic delete हुआ है. rate of change with time वाला है, right, this part, rate of change of bodies and use of derivatives in approximation. So this topic has been deleted. इसके सारे examples और इससे related एक exercise है, exercise 6.4, पूरा deleted है. और miscellaneous exercise में जो question जो related है ये दोनों topics है, that have been deleted, right. So मैं दिखला देता हूँ एक बार miscellaneous exercise में. miscellaneous exercise, yes, यहाँ से start है miscellaneous exercise. इसमें ये first question deleted है because this question is related with approximation. and उसके बाद कौन सा question deleted है, right, what is the cost of including, yeah, everything is there. ओके, ये पूरा है. इसमें सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन डिलीटेड और थर्ड क्वेश्चन डिलीटेड बिकॉज थर्ड क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज. ओके, एंड 11th is there, 12th is there, 13, 14, 15, 16, 17, 18, yes, everything is there. One more, 19th question is also deleted. This is also based on rate of change of bodies. Okay, तो अभी एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं एक बार. मिसलेनियस एग्जाम्पल्स में 51 है, 50 भी है, 49 डिलीटेड है बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज. 48 है, राइट, और 47 भी है, एंड 46 इज ऑल्सो देयर, एंड 45 इज ऑल्सो देयर. 44 इज नॉट देयर बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, राइट. 43 भी नहीं है क्योंकि दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज. And the example 42 is also based on rate of change of bodies. Okay, so ये सारे examples deleted है. Now we'll move towards the next topic, next chapter, linear programming, right. So linear programming में थोड़ा यहाँ पे देखेंगे. So linear programming में केवल एक ही क्वेश्चन डिलीटेड है, that is unbounded. Okay, all the problems, whether it is word problems or
क्वेश्चंस बेस्ड क्वेश्चंस अनबाउंडेड वाले ही क्वेश्चंस इसमें डिलीटेड है। थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे ये है कि वर्ड प्रॉब्लम डिलीटेड हो गया। वो कंफ्यूजन क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ दिस पार्ट। यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जो है ये पार्ट निकाल दिए, और जो अनबाउंडेड जो क्वेश्चंस हैं, जितने भी अनबाउंडेड क्वेश्चंस हैं वो निकल गया, राइट। तो अनबाउंडेड क्वेश्चंस और मैथमेटिकल फॉर्मेशंस से ये रिलेटेड, ये मतलब नहीं है कि वर्ड प्रॉब्लम्स निकल गया। आई विल शो यू फ्रॉम द एनसीईआरटी वर्ड प्रॉब्लम कहाँ पर है। ओके, सो व्हेन यू गो थ्रू दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस वन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग इज देयर, ये तो है यहाँ पर, और यहीं पे हम लोग के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स, डाइट प्रॉब्लम्स, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डाइट प्रॉब्लम्स, तो ये भी वर्ड प्रॉब्लम है, राइट। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बट ये क्वेश्चन जो है, this question is based on diet problem. Okay, so diet problem is one of the type of linear programming. ये वाला पार्ट सिलेबस में, राइट right? और इसमें लेकिन एक चीज है, ये क्वेश्चन डिलीटेड है। व्हाई दिस क्वेश्चन इज डिलीटेड, दैट आई विल शो यू। क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, बट वर्ड प्रॉब्लम है, अनबाउंडेड वाले डिलीटेड है, राइट। सो ये क्वेश्चन जो है वो अनबाउंडेड वाला है, right? This question is based on unbounded, because here feasible region is unbounded, so this question is deleted. Now example 7, it is bounded only, so this is not deleted. Example 8 is again bounded, this is not deleted, right? And इसमें भी exercise 12.2 में जितने भी questions जो unbounded वाले हैं वो सारे deleted हैं। और let us move towards the first part, फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज में भी जितने भी ये क्वेश्चन जो अनबाउंडेड वाले हैं वो सारे डिलीटेड है, राइट। जैसे ये अनबाउंडेड है, दिस इज ऑल्सो डिलीटेड, एंड दिस इज बाउंडेड, दिस इज नॉट डिलीटेड, दिस इज ऑल्सो बाउंडेड, दिस इज ऑल्सो बाउंडेड। सो बाउंडेड वाले सारे क्वेश्चंस वो डिलीट नहीं हुए, केवल अनबाउंडेड वाले पार्ट डिलीटेड है, ये वाला पार्ट। सी, only bounded is there, and I have already shown that different types of linear programming, right? So this is the first term syllabus, and all questions which is based on unbounded, right? solve करने के बाद आपको पता चलेगा कि feasible region अगर infinitely और infinite के तरफ जा रहा है, unbounded है, then that problem is deleted, right? So miscellaneous exercise में भी कुछ questions हैं जो unbounded हैं, miscellaneous example, not exercise, not example. So इसमें भी जितने अनबाउंडेड वाले क्वेश्चंस हैं वो सभी स्टूडेंट छोड़ सकते हैं, राइट। सो दिस इज द टर्म 1 सिलेबस। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स टर्म 2 सिलेबस। टर्म 2 सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर है इंटीग्रेशन, राइट, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का मैं सिलेबस दिखा देता हूँ। दिस इज द रिड्यूस्ड सिलेबस, राइट, एंड दिस इज द एक्चुअल सिलेबस। इसमें क्या क्या पार्ट डिलीट हो गया, एक तो ये लास्ट वाला जो टाइप है, दिस टाइप इज डिलीटेड, दिस टाइप इंटीग्रल इज डिलीटेड, एंड डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, ये भी डिलीट हो गया। ओके, सो ये दोनों ही डिलीट है इसमें, बाकी सब पूरा का पूरा है, देखिए, राइट। और वो मैं दिखला देता हूँ कहाँ पर है, कौन से एक्सरसाइज में है, राइट। सो ये पूरा का पूरा है यहाँ पर, दिस इज ऑल्सो देयर, ये भी है, पूरा है। डायरेक्ट मैं जा रहा हूँ इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, ये वाले फॉर्म में। अगर ये वाला फॉर्म टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में नहीं दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक के सप्लीमेंट्री वाले पार्ट में दिया हुआ है, तो सप्लीमेंट्री पार्ट छोड़ देंगे। और टेक्स्ट बुक में कौन सा छोड़ना है, टेक्स्ट बुक के जो एक्सरसाइज में जो कौन सा छोड़ना है, दैट आई एम गोइंग टू शो यू, राइट। डेफिनेट इंटीग्रल जहाँ से स्टार्ट होता है, डेफिनेट इंटीग्रल का फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज है, यस, दिस वन, दिस टॉपिक हैज़ बीन डिलीटेड, राइट। इससे रिलेटेड एक ही एक्सरसाइज है, छोटा सा एक्सरसाइज है, वो डिलीट हो गया है, ये वाला। ओनली 6 क्वेश्चंस आर देयर, सो एक्सरसाइज 7.8 ही बस इसमें डिलीट हुआ है। और जो ये वाला जो एक्स्ट्रा जो टाइप है वो हम लोग के सप्लीमेंट्री वाले पार्ट में दिया हुआ है, दैट वो छोड़ देंगे। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट एक्सरसाइज चैप्टर, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, राइट।
सो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, एक मिनट, सॉरी, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में एक इसमें भी कंफ्यूजन ये है, क्या कंफ्यूजन है दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. दिस इज द रिड्यूस्ड सिलेबस एंड दिस इज द फुल सिलेबस. इसमें ये वाला पार्ट नहीं है, दिस पार्ट इज नॉट देयर. ओके, अब ये वाला पार्ट जो है एरिया बिटवीन एनी टू ऑफ द टू अबव सेड कर्व्स हो गया, मतलब लाइन सर्कल्स दोनों के बीच का जो एरिया है. बट लास्ट ईयर भी ये डिलीटेड था और सैम्पल पेपर के सैम्पल पेपर में क्वेश्चंस था. सो और बहुत बड़ा चैप्टर तो नहीं है ये. सो मेरा सजेशन ये है कि अगर बच्चे कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है. तो मैं दिखला देता हूँ कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है. वेट, यस, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, दिस 8.3 topic has been deleted according to the revised syllabus. Okay, so ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये डिलीटेड है, राइट. सो अब इसमें एक प्रॉब्लम ये हो गया था कि लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आ गया था इसमें. सो इसलिए ये करके छोड़ देंगे तो ज़्यादा बेटर है. इट विल बी गुड फॉर यू. ओके, गुड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. राइट, नाउ विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, that is differential equation. Differential equation पूरा का पूरा full chapter except one type of differential equation. So ये वाला last वाला, this part. Okay, this type of equation is deleted, right? So आखिरी में last exercise है. Last exercise पे कुछ questions हैं जो उसके basis पे है, right? That I am going to show you. Integral, right? जैसे ये वाला question है यहाँ पे, एक मिनट, कहाँ गया, dy by dx, right? See this example 21. Example 21 is based on this one. Okay, so this type of question is deleted, but this is very similar to the first type. अगर बच्चे कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है. Okay, my advice to complete this also because this is very similar to dy by dx plus py is equals to q, right? और बहुत थोड़े से क्वेश्चंस हैं, वो कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है. ओके, सो इसमें बस इतना ही डिलीटेड है और एक टॉपिक डिलीटेड है इसमें. इसमें एक फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी डिलीटेड है, दिस पार्ट. ओके, सो दिस पार्ट इज आल्सो डिलीटेड. वो कौन सा एक्सरसाइज है वो मैं दिखला रहा हूँ. सेकंड एक्सरसाइज है, राइट? सेकंड एक्सरसाइज में आ रहा हूँ मैं, 9.4, 9.2 पे आ रहा हूँ मैं. 9.2, एक मिनट, यहाँ पे देखो, नहीं 9.3, सॉरी 9.3, ये वाला टॉपिक पूरा डिलीटेड है, दिस पार्ट 9.3. सो सारे एग्जाम्पल्स और ये फुल एक्सरसाइज डिलीटेड है, एक्सरसाइज 9.3. सो डिफरेंशियल इक्वेशन में दो पार्ट डिलीटेड है, एक एक्सरसाइज 9.3 जो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, और एक dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q वाला फॉर्म डिलीटेड है, राइट? दिस पार्ट and this part is deleted, right? Now we'll move towards the next chapter. differential equation के बाद वेक्टर पे आ जाते हैं. वेक्टर अलजेब्रा में सिर्फ एक ही टॉपिक डिलीटेड है, that is scalar triple product. wait, yes, वेक्टर अलजेब्रा. वेक्टर अलजेब्रा में देखिए पूरा का पूरा फुल सिलेबस है, right? Only the last part, this part has been deleted. Okay, see everything is there, only the last part, scalar triple product of vectors, is deleted. That topic I will show you where it is. The last topic, exercise, last exercise है, 2 vectors, 3 vectors वाला deleted है, only 3 vectors. वेट, इससे पहले ओके, ये जो वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये भी सप्लीमेंट्री में दिया हुआ है, तो सप्लीमेंट्री वाले पार्ट को आप छोड़ सकते हैं, राइट? इट इज़ नॉट गिवन इन द रेगुलर एक्सरसाइज. तो रेगुलर एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस करने हैं वेक्टर अलजेब्रा में, फुल सिलेबस. ओनली द ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट जो है वो पार्ट छोड़ देंगे जो सप्लीमेंट्री पोर्शन में है.
Now we'll move toward the next chapter, three-dimensional geometry. Three-dimensional geometry में this is the reduced syllabus and this is the actual syllabus. इसमें ये वाला part delete हो गया. Angle between two lines, two planes, a line and a plane, and everything is there. ये टॉपिक छोड़कर बाकी सारे टॉपिक्स इसमें हैं. सो ये मैं दिखला देता हूँ कहाँ पर है. राइट. सो काफ़ी कुछ सिलेबस डिलीट हो गया है. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन ये भी है. प्लेन एंगल्स इसके बाद इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद यस यहाँ से 11.8 एंगल बिटवीन टू प्लेन. ओके, एंगल बिटवीन टू प्लेन ये टॉपिक हो गया. और एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन भी है, दैट आल्सो देयर. यस, इसमें है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू, या दिस पार्ट, दिस एंगल ये भी डिलीटेड है. एंगल बिटवीन टू लाइंस 11.4. इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं एंगल निकालने वाले क्वेश्चंस, जैसे एग्जांपल 9, एग्जांपल 10 एंड एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है वो मैं दिखला देता हूँ. एक्सरसाइज में रिलेटेड टू फाइंड द एंगल्स, या क्वेश्चन नंबर 10, 11, बट ये सारे बहुत सिंपल हैं. यूजिंग अ वेरी सिंपल फॉर्मूला ऑल द स्टूडेंट्स I suggest you that the student should complete this one also. एग्ज़ाम के लिए रिवीजन के लिए छोड़ देंगे, बाकी सब कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है. एंड एंगल बिटवीन टू प्लेन जो मैं अभी दिखलाया था इससे पहले, राइट. दिस इसके बाद कोप्लानरिटी ऑफ टू, राइट. दिस पार्ट 11.8 ये वाला टॉपिक भी डिलीटेड है. एग्जाम्पल 22, एग्जाम्पल 23 और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, दिस आल्सो डिलीटेड. एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, एग्जाम्पल 25. और इसमें क्या क्या डिलीटेड है वो मैं बता देता हूँ. ये पूरे हैं. एक क्वेश्चन 12 एंड क्वेश्चन 13. क्वेश्चन 13 भी डिलीटेड है, राइट. और मिसलेनियस एक्सरसाइज में जितने भी एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे डिलीटेड हैं, राइट. सो थोड़ा जल्दी जल्दी दूसरे चैप्टर पे जाते हैं हम लोग. वी आर मूविंग टुवर्ड द लास्ट चैप्टर, प्रोबेबिलिटी. अब प्रोबेबिलिटी में देखिए, ये दिस इज़ द रिड्यूस्ड सिलेबस एंड दिस इज़ द कंप्लीट सिलेबस. इसमें ये वाला पार्ट पूरा लास्ट का डिलीटेड है. मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये मैं दिखला देता हूँ कहाँ पर है, कहाँ से छोड़ना है. सो ये भी पूरा करेंगे. बेस थ्योरम भी पूरा है, राइट. इसके बाद हम लोग पहुंच रहे हैं रैंडम वेरिएबल्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. सी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ तक करना है. ओके, सो दिस इज द लास्ट टॉपिक, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इसमें इससे रिलेटेड जो मीन वगैरह जो क्वेश्चंस हैं वो छोड़ सकते हैं. दैट हैज़ बीन डिलीटेड. दिस इज मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल डिलीटेड and variance of random variable deleted and using binomial distribution that also has been deleted, right. ये सारे questions deleted है, ये binomial expansion से related है. इसमें 13.4 में फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे probability distribution, और उसके बाद सेकेंड थर्ड भी कर सकते हैं, और probability distribution फोर्थ भी है, फिफ्थ भी है, और सिक्स्थ भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, सेवन्थ भी है. और यहाँ पर ये भी कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 से अब देखेंगे जो डिलीटेड है. ये भी डिलीटेड है, ये भी डिलीटेड है. ओके, 13, 14, 15 ऑल्सो डिलीटेड, 16 ऑल्सो डिलीटेड एंड 17 ऑल्सो डिलीटेड, राइट. और 13.7 पूरा का पूरा डिलीटेड है टॉपिक, और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो भी सारे डिलीटेड है, राइट. दिस ऑल एक्सरसाइज, कंप्लीट एक्सरसाइज इज डिलीटेड. और क्वेश्चन जो हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज में, द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मीन, वेरिएंस एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एवरीथिंग इज डिलीटेड. दैट द स्टूडेंट may leave for while preparing the examination, for examination.
Okay, so this is the discussion of the term-wise syllabus of class 12th, right? So thank you. That's all for today's session. Thank you. Thank you very much.